جی السلام علیکم ناظرین، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ملک میں اس ٹائم معاشی ابتری بھی بہت ہے، سیاسی صورتحال بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اس حوالے سے یہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں اور کامرس کو ڈیل کرتے ہیں۔ ان پوچھیں گے کہ یہ آئی ایم ایف سے ان کے معاملات طے کیوں نہیں ہو رہے؟ پاکستان نے تو سخت ترین شرائط بھی پوری کر لی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب شاید آئی ایم ایف اگر قرضہ نہ بھی دے تو پاکستان آئندہ بجٹ آرام سے پیش کر سکے گا۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے وعلیکم سر؟ السلام جی علی، بہت شیخ صاحب، شکریہ۔ یہی آپ سے سوال ہے کہ آئی ہاں، ایم ایف کچھ دیکھیں، بھی نہیں کر رہا اس ٹائم۔ جیسے ابھی آپ نے اپنے جی انٹرو جی میں بتایا نا کہ ہم نے بیشتر شرائط، دیکھیں پاکستان نے وہ شرائط پوری کی جو انہوں نے نہیں کہا تھا۔ مطلب ہے کہ جی ایس ٹی کے حوالے سے، ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے اور دیگر ٹیکسز کے حوالے سے جو آئی ایم ایف کی خواہش نہیں تھی، وہ پاکستان کی حکومت نے وہ بھی کیا اور وہ بھی ٹیکسز عائد کیے، اور ان کا رزلٹ بڑا اچھا نکلا ٹیکسز کی شکل میں۔ لیکن آئی ایم ایف اس لیے نہیں مانا کہ آئی ایم ایف کو امریکہ نے یہ ایگریمنٹ کرنے سے منع کر دی ہے۔ پھر سنیں، امریکی لابی نے، جس میں انڈین لابی بھی ہے، جس میں اسرائیلی لابی بھی ہے، انہوں نے مل کے آئی ایم ایف کو پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے سے منع کر دیا ہے، تاکہ پاکستان جو ہے وہ سی پیک کے حوالے سے، پھر یہ میری بات نوٹ کریں، سی پیک کے حوالے سے کوئی پرفارم نہ کر سکے، سی پیک کے حوالے سے کوئی انڈسٹری جو ہے وہ امپورٹ نہ کر سکے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر ان کو آئی ایم ایف نے دیے، یہ پیکج کی شکل میں، جو کہ نواں جائزہ ہے، نویں نائنتھ جو ہے وہ نواں ان کی انسٹالمنٹ ہوگی، یا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ جو ہے اگر ان کو دی تو انہوں نے اس میں جو ہے وہ سی پیک کے لیے مشینری امپورٹ کرنی ہے، اور مشینری امپورٹ کر کے وہ جو سی پیک کی تکمیل ہے اس میں استعمال ہونی ہے۔ اس لیے امریکہ نے باضابطہ طور پہ آئی ایم ایف کے جو بڑے ہیں، جو جی جی ذمہ دار ہیں، جی 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 ریسپانسیبل ہیں، ان کو یہ جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ نے یہ ڈیل نہیں کرنی، ورنہ اب تک جتنی شرائط تھی وہ تو ساری، دیکھیں نا پاکستان کی پوری زندگی جو 75 یا 76 سال کی لائف ہے، اس میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی۔ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ 50% سے تجاوز کر چکی ہے۔ بہرحال ادارہ شماریات یہ کہتا ہے کہ جی 46 42 44 کے حوالے سے بتا رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ بھی کامرس جی رپورٹر جی ہیں، میں جی بھی کامرس رپورٹر ہوں، 50% سے جو ہے نا وہ تجاوز کر چکی ہے۔ ہر چیز جو ہے اس میں اچھا 50% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ صحیح کمریں کہہ رہے ٹوٹ ہیں، گئی ہیں، اچھا سر، قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ اپنا وزیر خزانہ ہیں ساکھدار صاحب، ان کا ایک دن قبل کا بیان ہے کہ آئی ایم ایف نے اگر قرضہ دینا ہے تو پاکستان کو دے دے، ورنہ اگر نہیں دیتا تو ہم اس کے بغیر بھی ڈیفالٹ نہیں کریں گے۔ کیا تیاری کی ہے یہ پاکستان نے؟ 2 دن پہلے اسحاق ڈار کا یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی۔ جی یہ اصل میں ایک انٹرنیشنل مالیاتی ادارہ ہے، بلوم برگ، جی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان جلد ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں اسحاق ڈار کو پھر یہ میڈیا پہ آنا پڑا، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جون تک 3.5 ارب ڈالر کی ادائیگیاں ہونی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جون تک، بالکل آپ صحیح ٹھیک کہہ ہے، رہے ہیں۔ جون یعنی کہ 30 جون تک، اور وہ جو 3.5 ارب ڈالر ہے اس کا انتظام ہو چکا ہے۔ یہ ادائیگیاں پراپر اپنے شیڈول کے مطابق کریں گے، تاکہ پاکستان پہ جو ہے وہ یہ اعتراض نہ کرے کہ انہوں نے ادائیگی نہیں کی۔ پھر سن لیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں آپ کو آپ کے چینل کے تھرو یہ بات کرنا چاہوں گا کہ چائنا اور سعودی عرب اور یو اے ای، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے چھوٹے نہیں بہت بڑے انتظام کر رکھے ہیں، چھوٹے نہیں۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے، اگر آپ نیا مالی سال جب شروع ہوگا نا، 1 جولائی کو نیا مالی سال، تو تب تک پاکستان کے جو ریزرو ہیں نا اسٹیٹ بینک کے، وہ 10 ارب ڈالر سے کراس تجاوز کر چکے ہوں گے۔ یہ بات میں نوٹ کر لیں۔ اس لیے موجودہ حکومت جو ہے وہ مطمئن ہے۔ نمبر 2، جو 9 جون کو بجٹ آ رہا ہے، وفاقی بجٹ علی، جی جی وہ بھی سنیں۔ اب اس بجٹ میں موجودہ پی ڈی ایم نے اپنی سیاست کو بچانے کے لیے جو بھی میکسیمم ریلیف ہو سکا وہ انہوں نے پاکستان کے عوام کو دیں گے، جس میں گھی، چینی، آٹا کی قیمتوں میں کمی، جس میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی، جس میں دیگر اشیاء جو کہ کچن کی اشیاء ہے ان کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے موجودہ حکومت کی خواہش ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی بھی بات سن لیں، یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ فی الحال جو ہے نا وہ ایگریمنٹ نہ ہو۔ اس کا مطلب آئی ایم ایف کے بغیر ہم چل سکیں گے، بالکل 100%، بڑے، اور آئی ایم ایف کی بلیک میلنگ میں ہم نہیں آئیں گے۔ سر بہت بڑے بڑے انتظام، میں آپ اچھا کو خبر دے رہا ہوں اچھا نا کہ چائنا جو ہے،
चाइना साहब ये भी हमें इसमें बता दें कि सी पैक आप रुकेगा तो नहीं प्रोग्राम, ये ज़रा बताएं। देखें सी पैक के हवाले से मैं आपको मैं ये भी आपको क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में मैं- इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात भी दाव पे लगा दिए। सर वो सिर्फ तलक़ात दाव पे, वो तो चले आइसोलेट पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया से कर दिया इमरान खान ने, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो कि सी पैक जो चल रहा था जब इमरान खान आया था उस वक्त तक जो है, मुझे अभी तक फवाद चौधरी का बयान याद है कि उन्होंने कहा था कि 22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है सी पैक की मद में, जिसमें ये मोटरवेज हैं, ये एक्सप्रेस जी, वे, जी, ये बिजली के जो कारखाने एनर्जी के हवाले से। देखिए ना मई का महीना जा रहा है, आपको कहीं लोड शेडिंग नज़र आई है? जी कल भी गर्मी थी, परसों भी गर्मी थी, आगे क्या होता है बहरहाल। जी जी कहने का मतलब ये है कि 22 अरब डॉलर की अगर उस वक्त अगर ये मुकम्मल, अगर ये इस्टेब्लिशमेंट साकब नसार, आसफ सईद खोसा, उमर अता बंदियाल और बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, ज़हीरुल इस्लाम पाशा, अगर ये सारे मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश ना करते और नवाज शरीफ को सी पैक मुकम्मल करने देते तो आज आप देखते पाकिस्तान लेवल के अतबार से, दर्जे के अतबार से किन मुल्कों में उनका शुमार हो रहा होता। तो शेख साहब आपने ये बात की, इस टाइम शरह सूद जो है वो 21% पे स्टैंड कर रही है और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जून तक 30 जून तक इसमें मज़ीद इजाफे का खदशा है, 24 से 25% पर जा सकती है। इस हवाले से ये बात आपका सवाल बिल्कुल ठीक है और अच्छा सवाल है कि इनका ख्याल था कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से महंगाई कम होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, सही कह रहे हैं। लेकिन इनका ये जो फार्मूला है वो काम नहीं आया। जैसे जैसे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते गए, बैंक रेट बढ़ाते गए, यहाँ तक कि ये 21%, ठीक है, इन्होंने कर दिया, लेकिन महंगाई उसी शरह से मज़ीद बढ़ती गई। और ये तो मेरा ये ख्याल है, मेरे जो ज़राए हैं, स्टेट बैंक के ज़राए हैं, वो जून तक जो है वो यही जो शरह सूद है यही बरकरार रहेगी, उसमें इजाफे का इम्कान नहीं है। क्योंकि 21% पर तो कोई भी कारोबार नहीं हो सकता। नहीं जी, आप वो समझते कोई हैं भी आप बंदा साहब। बैंक के पास आने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएं कि ये जो आपने बताई ये महंगाई की जो शरह है, आपने अभी ये बताया कि बजट में चीज़ें सस्ती की जाएंगी, लेकिन जो ये फिर नोट करें, ये वीडियो संभाल के रखनी है आपने कि जी। पीडीएम ये जो 9 जून को बजट पेश हो रहा है ना, इसमें वो सियासत जो पिछले 1.25 साल में उनकी ख़त्म हो चुकी है ना, उसको ज़िंदा करने के लिए बड़े अच्छे इकदाम कर रही है। अच्छा सर, ये बताएं ये महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? एक तो आपने सब्सिडी का है ना, ये रेट्स पे कंट्रोल करेंगे, बाकी हर देखे ना, अब तो दिनों में देखे ना, कीमतें बढ़ रही हैं। देखे ना, ग्रॉसरी लेने देखे- जाए तो शेख साहब दिनों में कीमतें बढ़ रही हैं। सर देखे ना, 31 मार्च तक इन्होंने मोबाइल और गाड़ियों पर एक्साइज ड्यूटी जो थी वो डबल ट्रिपल कर दी, वो जी, ख़त्म जी। हो गई। अब उसके बाद क्या है कि मोबाइल भी आपके सस्ते होने जा रहे हैं और गाड़ियाँ भी सस्ती होने जा रही हैं। मतलब ये है कि अगर इन्होंने बजट में फ़र्ज़ करें घी है या चीनी है जिस पे 17% सेल टैक्स है, अगर ये कम करके 7 या 8% कर दे तो 120, 130, 150 रुपये फ़ी किलोग्राम तक घी में जो है ना वो कमी वाक़ होगी। और इसी तरह अगर इन्होंने चीनी की के सेल टैक्स में इन्होंने कमी की, ये चीनी जो आज 120 रुपये, ये आपको उस वक्त के बाद जो है उस बजट के बाद वो मार्केट में 95 रुपये 100 रुपये किलो दस्ते होगा। एक सवाल ये भी है कि तकरीबन डॉलर 292 इस पे पहुंचा, कल कम हुआ है रेट, 2 दिन पहले रेट बढ़ गया सर था। कल देखें ये आपने ये हमारा एक वीलॉग हुआ था पिछले साल, उसमें आपने कहा था कि 200 से नीचे आ जाएगा, हाँ। तो ये ऐसी कोई उम्मीद नजर आती है कि हम किधर खड़े हैं? नहीं, शेख साहब? मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो मैंने आपसे बात की थी उसमें चूँकि सागदार ये कह रहे थे कि इसकी जो कीमत बनती है वो 180, 190 रुपये बनती है, जो कि खिलाफ हकीकत थी। और इसमें मैं ये कहूँगा कि उसमें मुफ्ता इस्माइल जो थे हमारे फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी बात ये थी कि मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाए। यार देखें, घी, चीनी, आटा, आज आपने सारा कुछ मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया ना। मार्केट फोर्सेस उनके निर्ख जो हैं तयन करती हैं जी, कि आज रेट क्या है। मतलब आज अब जाएँ मुर्गी का रेट जो है वो 550 या 600 रुपये है, 617 है जी। ठीक है जी। कल जाएंगे वो कम होगा या ज़्यादा होगा, वो इसलिए कि वो डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक उनके जो रेट है वो मुकर्रर किए जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि डॉलर को जो है ना वो उसके ऊपर कैप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने कैप लगाया, उसका जो नुकसान है वो क्या, वो ये जो अभी तक आप बात कर रहे हैं ना, ये कैप लगाने से उसके नुकसान हो रहे हैं। आपको उसके ऊपर कैप लगाने की, उसके ऊपर बंद बांधने की, उसके सामने बैरियर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कीमत है, जो वो परचेज़ करेंगे, जो अली परचेज़ करेगा, जो मैं परचेज़ करूँगा, उसके मुताबिक मार्केट में डॉलर मौजूद होगा। शेख साहब, माशी जो अबतरी है उसको मुंसलिक किया जा सकता है गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के साथ? गैर यकीनी देखे ना,
कल 14 रुपये डॉलर की कीमतों में कमी हुई है। आज भी जो है, आज भी रुपया मुस्तहिकम है। बात सिर्फ ये है कि सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं अली, आप जहाँ भी चले जाएं, जहाँ भी पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं वो अगर अपने लेवल में हैं तो मुआशी सूरत हाल बहुत बेहतर है। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिका में कोई लड़ाई नहीं है? अभी तक लड़ाई है। यूरोप में कोई नहीं है, इंडिया में नहीं है। उनके मुखालफिन क्या कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इंडिया मुसलसल मुआशी एतबार से आगे जा रहा है, बल्कि अब तो वो यूरोप से, बरतानिया से भी आगे जा चुके हैं। कहने का यहाँ पे तो देखें ना, इमरान खान जो है वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि मैं ये समझता हूँ, मेरे पास सबूत हैं कि सर से लेके पाँव तक वो करप्शन में जो हैं वो मुब्तला हैं। उनकी घर वाली, उनके अजीज़ व अकारब सब के सब करप्शन में हैं, लेकिन वो अपनी करप्शन नहीं देख रहे। ये नहीं देख रहे कि 60 अरब रुपए का जो इशू है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, जो मैंने मलिक रियाज के हवाले कर दी है, वो उसकी बात नहीं कर रहे। अफसोस की बात है, उनके रहनुमा भी बात नहीं कर रहे। वो बात आपको कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं। और ये जो कोर कमांडर हाउस पे जो हमला हुआ है, ये वही लोग हैं ना जो हमें पिछले 1.5 साल से, 2 साल से, 3 साल से चोर डाकू कह रहे थे। और वहाँ पे किसी के हाथ में वो दही आया, वो दही ले गया। जिसके हाथ में हंडिया आई है वो हंडिया ले गया। जिसके हाथ में मोहर आए, जिसके हाथ में इवन के झाड़ू जो है, चूँकि झाड़ू है, कोर कमांडर हाउस का झाड़ू कीमती था, वो झाड़ू ले गए। वहाँ से बाल्टियाँ ले गए, गिलास ले गए, वहाँ पे चमचे ले गए। ये वो लोग हैं जो हमें चोर डाकू और मौजूदा हुक्मरानों को कह रहे थे। मतलब ये है कि जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने वो कुछ कर दिया जो कि कुत्ते ढाका के वक्त भी नहीं हुआ। ये मुझे बताएं कि मैसेज क्या देंगे नौजवान नस्ल को, जो हमारे कुछ हमारे मासूम बच्चे नौजवान। मैं यूथ, आपके सवाल के वजह से यूथ से यही दरख्वास्त करूँगा कि बात को समझें और सबसे पहले पाकिस्तान को रखें और तहकीक करें। सबसे पहले पाकिस्तान को रखें। जब आप पाकिस्तान को सबसे पहले रखेंगे ना, तो सियासत आपके दूसरे नंबर पे आ जाएगी। सियासत इमरान खान ने भी करनी है, नवाज शरीफ ने भी करनी है, बाकी ने भी करनी है। लेकिन आप समझें कि आप जो करने जा रहे हैं, जब आपके रहनुमाओं ने या इमरान खान की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल मिला कि आपने कोर कमांडर हाउस जाके हमला करना है, तो क्या आप एजुकेशन आपके पास नहीं थी? एजुकेशन थी आपके पास। आपको समझना चाहिए था कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो जुर्म नहीं है, वो इल्ज़ाम नहीं है, वो दहशत गर्दी है। और वो दहशत गर्दी आप अपनी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं। इन बातों को समझने की ज़रूरत है और इन बातों को समझ के अपना रास्ता, अपनी सिमत जो है, डायरेक्शन, वो सही करने की ज़रूरत है। आखिरी एक आपसे सवाल वो कर रहे हैं कि मतलब जो करदार थे 2018 में हुकूमत की तब्दीली के, नवाज शरीफ को हटाया गया, जिस तरह इलेक्शन हुए, RTS बैठा, ये वो करदार जो अदलिया में भी मौजूद थे साकिब नसार साहब की शक्ल में, और वही करदार कुछ फ़ौज में भी मौजूद थे, साबिक जर्नैल जो हैं, इनके खिलाफ इनके इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए। देखें जी, पहली बात तो ये है कि कोर कमांडर हाउस में जो कुछ हुआ, और उसके बाद कल एक वीडियो है जिसमें कोर कमांडर साहब जो हैं वो भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी मिसेज भी हैं। बात यह है कि आप उनको समझा रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। भाई ये काम आपका तो नहीं है। आप तो कोर कमांडर लाहौर जो है वो बहुत बड़ी बात है। कोर कमांडर लाहौर की जो हैसियत है ना, जितने भी कोर कमांडर हैं पाकिस्तान में हाउस हैं, उनके मुकाबले में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आप तो बिल्कुल ही, आपने तो सारे हथियार फेंक दिए भाई। इसको दिफा करने के एक नहीं हज़ारों आपके पास ऑप्शन थे, आपने एक ऑप्शन पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से जिसे गफलत और लापरवाही करार दिया गया। और जो कल की वीडियो आई ना, उसके बाद उनसे ये कहा गया कि आप वहाँ से उठे, आपकी ट्रांसफ़र जो है वो GHQ में कर दी गई है, वहाँ आप जाके तशरीफ़ ले जाएँ। यहाँ पे जो है वो फ़याज़ शाह साहब जो हैं, जी, उनको नया कोर कमांडर, और उनके बारे में बताऊँ कि वो बड़े दबंग किस्म के जो फ़याज़